Namaskar, my dear friends. I am Kamlesh Joshi. Welcome on my online classes. और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल, which is a very important topic to score very good marks in class 12 because this topic will come in many other chapters and playing a very important role. So, I request you to watch this video till end. I will divide these videos in three parts. The first one is the prerequisite knowledge that we should have to understand differentiation. The second part is the formulas of the differentiation that we have to keep handy to understand the chain rule. And the third part is application of this formula in a chain rule. So let us start the first part, that is prerequisite knowledge of differentiation. Now, first of all, the differentiation is the process that we can apply on any function. So, we should know what is the meaning of function. Already we have done function in class 11, and in function, the normal standard form of the function is fx is equal to any function. Let us take fx is equal to, I take a polynomial function which is a very simple function. So I take, say, fx is equal to 2x plus 3. I have taken fx is equal to 2x plus 3, where 2x plus 3 is a polynomial term having x power 1, hence it is a polynomial function. Now suppose I want to differentiate this function. So what do? We do differentiation of this equation in both the sides. Hence, we write d by dx of fx is equal to d by dx of 2x plus 3. This is called the process of differentiation that we have already done in class 11. Now, here you can see that there are two variables in this function. One is variable x and the second one is variable fx. As you keep on changing the value of x, what will happen? The value of the function also will keep on changing. So in this, we have to understand a very important thing, that is, what is the variable of the function. Sometimes we write instead of fx, we simply write it as a y is equal to 2x plus 3. And when we differentiate this, we get d by dx of y is equal to d by dx of 2x plus 3. Now, how to differentiate this? Now, understand one thing, that you are differentiating with respect to which variable. That is a very important thing that we should know. So, here we are doing differentiation with respect to x-axis. So, we are writing d by d of x. I am not writing any other variable like y or t or theta. It is a variable x using which I am doing differentiation both the sides. तो यहाँ पे हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जिसका वेरिएबल है x. तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3, उसमें डिफरेंशिएशन जिस वेरिएबल से कर रहे हैं वो भी x है और अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है वो भी x है. तो हियर both of them are the same variables. Hence you can continue doing the differentiation and you can distribute d by dx on both 2x as well as on 3.
Here there is no problem in doing differentiation because the variables are both same. But what happens in left hand side? In left hand side you can see that variable y, we are doing the variable y's differentiation with respect to x, which is not possible. The reason is until and unless you have the same variable, you cannot do the differentiation. Now, the next thing is to understand this, how to do the differentiation d by dx of y. We need to understand what is differentiation of x raised to n. This is a very basic formula of the differentiation. तो हमें ऑलरेडी पता है कि x raised to n का डिफरेंशिएशन क्या होगा when we are doing differentiation with respect to x. So x raised to n differentiation we know, that is nx raised to n minus 1. Now we take the power of x as 1. So if I replace x by 1, what is the differentiation of x raised to 1? So the differentiation of x raised to 1, for that I will replace n by 1 at both the places. So I get 1 as well as 1 over here. So what is the differentiation of x? 1 into x raised to 0. Now we know that any power of x power 0 is always 1 and 1 into 1. Hence we know that the differentiation of x is 1. Then what is the differentiation of y? So we have to see that what is the power of y. The power of y is 1. So what is the differentiation of y? So we do the mistake over here. देखिए ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं, जैसे ही हमें कोई फॉर्मूला हमारे सामने दिखता है तो हमारा ह्यूमन नेचर ये कहता है कि हम उसको जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वो चीज बिल्कुल नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, दैट द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन शुड नॉट बी जनरलाइज्ड। हम इसको जनरलाइज कर देते हैं और हम इसको लिखते हैं कि जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ वैसे y का डिफरेंशिएशन भी 1 कर दो सर। यहां पे प्रॉब्लम, चेन रूल सीखना 11th में ही आ गया था मगर हमने उसको नोटिस नहीं किया। हम जो करने वाले हैं वो ये है, चेन रूल वही है जिसको हम सीखना चाहते हैं, जिसको हम डायरेक्ट dy by dx लिख देते हैं, ये गलत है। ये dy by dx एक्चुअली आया कहां से? इट इज नॉट dy by dx ऑफ y को आप dy by dx लिख रहे हो, नहीं, यहीं से चेन रूल शुरू हो जाता है। कैसे चेन रूल शुरू होता है? पहला जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला था वो ये था कि जो ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है वही वेरिएबल से आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे वेरिएबल y है और उसके आगे जिससे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो x है। ये दोनों नहीं चलेगा, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो जो प्राइम वेरिएबल है y, आपको डिफरेंशिएशन भी विथ रिस्पेक्ट टू y ही करना पड़ेगा। मगर यहां तो हमारे पास dy नहीं है, यहां तो dx लिखा है। तो हम क्या करेंगे? हम चेन बनाएंगे। किस तरह से चेन बनेगा? तो आप देखिए, डी बाय, मुझे अगर y का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं उसको विथ रिस्पेक्ट टू y ही कर सकता हूं। क्योंकि मेरे पास dy नहीं है तो मैं dy से डिवाइड करूंगा और dy से मल्टीप्लाई करूंगा और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट dx है वो एज इट इज रहेगा। दिस इज कॉल्ड मेकिंग द चेन ऑफ dy। तो मैंने dy का जो चेन बनाया, एक्चुअली यू कैन कैंसल dy फ्रॉम बोथ द साइड्स, अगेन यू आर लेफ्ट विथ d by dx ऑफ y। मगर क्योंकि ये y वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आप नहीं कर सकते। तो आपने जो एडजस्टमेंट किया, क्या एडजस्टमेंट किया? dy को डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं चेन रूल, जहां पे आपने जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है उसी वेरिएबल को यहां पे d के साथ लिखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड वेरी स्मॉल डिफरेंस ऑफ x, दैट इज नोन एज dx। हमने उसको रिप्लेस कर दिया वेरी स्मॉल डिफरेंस ऑफ y, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि दोनों वेरिएबल अब सेम हो गए। हियर इज वेरिएबल y
and you can differentiate with respect to y and answer will remain d by dx of x जैसे किया वही लॉजिक आप यहां लगाएंगे d by dy of y आंसर विल बी 1। तो ये जो 1 आया उसके साथ जो एक्स्ट्रा बच गया है दैट इज dy by dx। Hence dy by dx is equal to, अब हम जो है अपने जनरलाइज वे में जो है उसको लिखना जो करते थे वो लिख सकते हैं, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि y का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम उसको एक ही स्टेप में हम dy by dx लिख देते हैं। एक्चुअली वो एक स्टेप में नहीं लिख सकते, उसके अंदर जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का जो आउटकम है वो है dy by dx। And then we can write differentiation of 2x as 2 and differentiation of constant as 0, so we get dy by dx as, तो यहां पे ही आपने चेन रूल का यूज कर दिया जब आप 11th में ही थे। एंड चेन रूल इज अ कनेक्टिंग ब्रिज ऑफ 11th स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन विथ 12th स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। अब 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन जो है उसमें चेन रूल कैसे आएगा, सेम चीज वहीं पे रिपीट होगा। Believe me, it is a very scoring and easy topic if you take care of few very simple things। तो बात करते हैं नेक्स्ट रूल की जो हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। वो रूल कौन सा है? तो वी हैव अंडरस्टूड द चैप्टर फंक्शन। उसमें एक और चीज आता है जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना है, दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। सपोज मैं लिखता हूं पहला फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर फंक्शन। अब मैं दूसरा फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये है दूसरा फंक्शन। ये दोनों फंक्शंस जो है वो बेसिक फंक्शन है, एक है स्क्वायर फंक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का मतलब दो फंक्शन को हमने कंबाइन कर दिया। कैसे? तो अगर मैं लिखता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने लिखा साइन के साथ जो x लिखा है उसके बदले मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। सेम वे अगर मैं लिखता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होल रेस टू टू, व्हाट इज दिस? इट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ साइन एक्स एंड स्क्वायर फंक्शन। तो जब हमारे पास कंपोजिशन के दो फंक्शंस या तो दो से ज्यादा फंक्शन का कंपोजिशन आता है तब हमें यूज करना है हमारा टेक्निक जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब कंपोजिशन में कोई दो फंक्शंस आपको दे दिए हैं तो आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो प्री रिक्विजिट नॉलेज हमारा ये कहता है कि हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एन एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। जब तक हमें ये बेसिक फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं समझ सकते, और ये हमें पता है, हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अब जब हमको पूछा जाता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, स्लोली स्लोली हम चारों चीजों को करेंगे तब पता चलेगा कि चेन रूल कितना इजी है। तो सपोज आई राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द क्वेश्चन इज फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन। So we do differentiation f dash x is, what is the differentiation of x square? तो x square का डिफरेंशिएशन करना है आपको, n के बदले 2 को रिप्लेस कर दो, तो x square का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1। वेरी गुड, इतना इजी है ये। बट हमारा ह्यूमन टेंडेंसी ये कहता है कि हम किसी भी चीज को जनरलाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि उसी तरह से तो हम सीखते हैं। अब हमारा पहला गलती होगा इस फॉर्मूला को जनरलाइज करना। कैसे जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू दिया जाता है स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर एक्स के बदले कोई दूसरा फंक्शन अगर डाल दिया जाए, सपोज फॉर एग्जांपल साइन एक्स, अब ये सिंपल फंक्शन नहीं रहा, अब ये हो गया है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस।
अब जब भी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस आता है तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि x के साथ पहले कौन सा फंक्शन है, विच इज इनर मोस्ट फंक्शन, एंड विच वन इज द आउटर मोस्ट फंक्शन। तो यहां पे आप देखिए x के साथ सबसे पहला फंक्शन आता है sin x, और आउटर मोस्ट फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन जो सबके बाद आता है। तो x is a main variable. With x, the first function is a sin x and the second function is a square. This is called composition of two functions, जहां पे आपको ये प्रैक्टिस करना जरूरी होगा to find out which is a primary function and which is a secondary function. तो यहाँ सेकेंडरी फंक्शन होगा स्क्वायर और प्राइमरी फंक्शन होगा sin x. अब जनरलाइज हम कर लेते हैं इसी चीज को कि fx का डिफरेंशिएशन अगर 2x है तो sin x का जो स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? fx is x square, f dash x is 2x. Hence, fx is a sin x का square, f dash x is the way we have done this, the same way we will do this, and this is called generalization, which is not allowed in differentiation at all. यहां आपको हमें चेन रूल का यूज करना पड़ेगा. यू आर नॉट सपोज टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन एट ऑल. अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो आप 2x लिख सकते थे, मगर x के बदले कुछ और है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट रूल ऑफ चेन रूल, दैट यू कैन नॉट जनरलाइज एनी क्वेश्चन वेयर यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. तो हमें इसको अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले तो ये याद रखेंगे दैट वी शुड नॉट डू दिस मिस्टेक एट ऑल. sin x का स्क्वायर है, उसको आप x स्क्वायर के फॉर्मूला से 2 sin x लिख के छोड़ दोगे. दिस इज नॉट डन. आपका कंसेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए. पहली मिस्टेक जिसको हम नहीं करेंगे वो है कि हम लोग sin x के स्क्वायर को 2 sin x x स्क्वायर का फंक्शन समझ के नहीं कर सकते. तो इसको कैसे किया जाए? अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो शुरू होती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो कंपोजिट पार्ट है, इनर मोस्ट फंक्शन, उसको आप कोई नया वेरिएबल सपोज कर लो. तो सपोज आई टेक द न्यू वेरिएबल से u. तो इसके अंदर जो फर्स्ट फंक्शन है जो है sin x, और दूसरा फंक्शन है वो है sin x का स्क्वायर. तो यहाँ पे जो कंपोजिशन में जो पहला फंक्शन है उसको हम ले लेंगे u, मतलब sin x को हम ले लेंगे u. आप बिल्कुल भी भूल मत कीजिएगा, मैंने इसके पहले जो सिखाया था उसको दिमाग में रखना है. मैंने क्या सिखाया था, मैं वापस इसको यहाँ पे एक बार और लिख देता हूं. अगर y का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, और जब आप x का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप dy by dx लिखते हैं वो ऐसे ही नहीं आता. दैट इज कमिंग आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चेन रूल. तो इसमें चेन रूल कैसे किया था वो आपको याद रखना है. इसमें मैंने y के साथ डिफरेंशिएशन करना है. आई शुड हैव डन द अरेंजमेंट of dy by multiplying and dividing it by dy. तो मैं dy से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करता हूं, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट dx है उसको मैं इसके साथ में ले लेता हूं. तो ये है d by dx of y. यहां पे आप देखिए कि y is a variable whose differentiation is being done by again dy. अब ये पॉसिबल है, जिसका आंसर होगा 1. तो ये होगा 1 into dy by dx. That's why we write it as dy by dx is equal to whatever your function's differentiation is. इस चीज को हमें यहां रिपीट करना है. सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन में से कंपोजिट पार्ट को हटा के सिंपल फंक्शन करना, वो मेरा पहला टारगेट होगा. तो इसको सिंपल फंक्शन करने के लिए मुझे जो कंपोजिट पार्ट है उसको कुछ सपोज कर लेना होगा. यहां पे कंपोजिट पार्ट sin x है, तो मैंने sin x को सपोज कर लिया है u. तो अब आपका क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा. पहले आपके क्वेश्चन का वेरिएबल x था विथ टू फंक्शंस, पहला साइन फंक्शन और दूसरा स्क्वायर फंक्शन. मगर जब मैं साइन फंक्शन को, जो कि इनर मोस्ट फंक्शन है, उसको जब मैं u ले लूंगा तो मेरा जो फंक्शन है वो डायरेक्ट फंक्शन हो जाएगा, कंपोजिट पार्ट चला जाएगा. तो अब मैं लिख सकता हूं fx इज इक्वल टू साइन x का स्क्वायर है, उसके बदले में इसको लिख दूंगा u स्क्वायर.
ज्यादा अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो हम उसको इजी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। मैं लेता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैंने साइन एक्स को u ले लिया तो मेरे पास नया क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड dy बाई dx। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये d बाई dx एक ऑपरेशन है जो मुझे दोनों तरफ करना है। तो d बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ u स्क्वायर। अब जरा सोचिए, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है उसमें राइट हैंड साइड में fx है, लेफ्ट हैंड साइड में y है, और मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें नोट ये कीजिएगा आप कि राइट हैंड साइड में तो fx कोई भी x का फंक्शन है। चेन रूल मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में यूज करना था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल y है और यहां पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में चेन सेट किया dy का, राइट हैंड साइड में एज इट इज जो भी फॉर्मूला होगा वो मैं अप्लाई कर दूंगा। वो चीज यहां पे नहीं होगा। यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल y है जिसको मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और राइट हैंड साइड में u है जिसको मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुझे लेफ्ट और राइट दोनों जगह चेन रूल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग है। एक है y और दूसरी तरफ है u, और दोनों को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं दोनों जगह चेन बनाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड में चेन बनेगा dy का और राइट हैंड साइड में चेन बनेगा du का। तो बनाते हैं चेन। तो d बाई dy, यहां पे y एज इट इज रहेगा, और dy को अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो इसको बोलेंगे चेन ऑफ dy। अब मैं इस पार्ट को डिफरेंशिएट कर सकता हूं क्योंकि यहां पे दोनों वेरिएबल सेम है, मगर यहां पे अभी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। तो व्हाट शुड आई डू? यहां पे मुझे चेन बनाना पड़ेगा du का। So I will write this as d by du of u square into, जिसको डिवाइड किया उसी को मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक्स्ट्रा पार्ट इस तरफ आ जाएगा। This is called making chain rule on both the sides। जैसे ही मैंने ये चेन रूल बनाया है, जहां पे dy का चेन लेफ्ट में दिख रहा है और du का चेन राइट में दिख रहा है, अब मैं इस बॉक्स में जो लिखा है उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, इस बॉक्स में जो लिखा है उसको भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि वेरिएबल सेम हो गए। अब व्हाट इज d by dy of y? एज वी नो d by dy of y इज 1, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1, इनटू वी हैव dy by dx, right hand side d by du of u square is a differentiation possible? Differentiation is possible if variable is matching। तो यहाँ पे वेरिएबल u है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फैक्टर भी u है, तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, वी कैन डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन u स्क्वायर का करना है, तो u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2u इनटू du बाई dx। ये है आपका चेन रूल का कंसेप्ट। आगे हम करेंगे अच्छे से, इसका आंसर लाना अभी बाकी है। तो व्हाट इज dy बाई dx? तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2u। अब आंसर में u नहीं छोड़ सकते क्योंकि u हमने सपोज किया, तो हम इसको u की वैल्यू को वापस डाल देंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? तो u इज अ फंक्शन sin x, तो हम यहाँ पे u के बदले sin x रख देंगे इनटू, अब यहाँ पे देखिए 2u के बाद क्या बचा हुआ, यहाँ पे है du बाई dx, तो हम इसको लिखेंगे d बाई dx ऑफ u, दैट इज du बाई dx, और वहां भी u के बदले हम लिख देंगे sin x। तो व्हाट इज dy बाई dx इज 2 इंटू साइन एक्स इंटू, अब आपको पता होना चाहिए कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, मगर क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हाँ, अगर दोनों वेरिएबल सेम है तो यस। तो चेक, कैन वी से दैट बोथ दिस वेरिएबल्स आर इक्वल? यस, क्योंकि यहाँ साइन का वेरिएबल
फंक्शन में x है और डिफरेंशिएशन वी आर डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so we can differentiate this and we get differentiation of sin x as cos x. So ultimately dy by dx is 2 sin x cos x. This is called chain rule, जो समझने के लिए बहुत बड़ा है। इसमें काफी सारे स्टेप्स हमने समझ के किए हैं। यही चीज हमें 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक स्टेप में करनी है, जिसके लिए हमें उसका शॉर्टकट भी सीखना होगा। और किसी चीज का शॉर्टकट सीखने से पहले हमें उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसलिए मैंने इस सिंपल से क्वेश्चन में जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, इसमें कंपोजिट पार्ट को सपोज करके दोनों तरफ का चेन रूल मैंने आपको सिखाया, ताकि ये सीखने के बाद जब भी आप इसका शॉर्टकट सीखने की कोशिश करेंगे तब आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जो ले जाऊंगा वो ये स्टेप होगा मेरी ये कोशिश रहेगी कि यही चीज जो आप इतने सारे स्टेप्स देने के बाद लिख रहे हो, उसी को आपको शॉर्टकट में इस स्टेप के बाद डायरेक्ट अगर ये स्टेप लिखना है तो किन चीजों की आपके पास जानकारी होनी चाहिए और क्या क्या रूल्स है उस चीज को सही तरह से करने का, दैट आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो. So thank you very much for being with me. Keep on watching for the next video, and thank you very much for coming. Take care. Goodbye.